Dear students, today we will discuss 14 principles given by Henry Fayol. First one is division of work. Second one is authority and responsibility. Next one is principle of discipline. Then principle of unity of command. Next one is unity of direction. Next is subordination of individual interest to general interest. Then remuneration of employees. Then centralization and decentralization. Principle of scholar chain. Next one is principle of order. Then principle of equity, stability of personnel, principle of initiative, and last one is esprit de corps. These are the 14 principles of management given by Henry Fayol. In this video, we will discuss only first 5 principles, that is division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, and unity of direction. First, we will discuss division of work. नाम से क्लियर है, division of work means the whole work will be divided into various parts. Each part will be called as task or job. If this circle is the whole work and this circle is divided into many parts, then each part is a job. And when work is divided, jobs are created and these jobs are assigned to various persons. A person will perform his task again and again, and the benefit of specialization will be achieved. Means wastages will be reduced, cost will be reduced, and time will be saved. Means benefits will be maximized. Now, explanation of this principle. According to this principle, the work is divided into different tasks or jobs, and each job will be assigned to one person. And when the job is assigned, this assignment will be on the basis of his qualification, experience, competence, so that he can perform the job efficiently. And when the person is performing the same task again and again, he will become expert of that job. एक काम को बार बार करेंगे तो एक्सपर्ट बन जाएंगे. जैसे कि आप अपने पर लेकर चलो, आप किसी काम को पहली बार करते हो तो शायद आपसे वो काम नहीं होता है. सेकंड टाइम आप उस काम को करते हो तो थोड़ा सा बेटर करते हो, नेक्स्ट टाइम और बेटर करते हो, और इस तरह से आप एक टाइम ऐसा आता है आप एक्सपर्ट बन जाते हो. और यहाँ तो जो पर्सन जिसको हमने वर्क असाइन किया है, वो जॉब असाइन की है, उसको उसकी नॉलेज है, उसकी क्वालिफिकेशन उस जॉब के अकॉर्डिंग है, तो सर्टनली काम तो करता ही होगा वो वाला, पर उसको बार बार करेगा तो वो उसका भी एक्सपर्ट बन जाएगा. एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. मीन्स
प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगा, काम जल्दी होगा, एफिशिएंसी इंक्रीजेज हो जाएंगी और वेस्टेजेस रिड्यूस हो जाएंगी. Because of this principle, in a company, various departments are formed like production department, purchase department, marketing department, finance department, research department. Means हर डिपार्टमेंट में उसी से रिलेटेड ही एक्टिविटी होंगी. परचेज डिपार्टमेंट में परचेज से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी. मीन्स जो वर्क को डिवाइड किया होगा वो परचेज से रिलेटेड वर्क ही उसमें होगा और जो जॉब असाइन करी जाएगी उनको भी उस काम परचेज से रिलेटेड काम ही करना पड़ेगा. इसको हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने 3 मैनेजर्स अपॉइंट किए. मीन्स द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मेन 3 जॉब्स, that is architecture job, civil contract job and interior designing job. तो उसके 3 मैनेजर हो गए, आर्किटेक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड इंटीरियर डिज़ाइन. फिर फर्दर आर्किटेक्चर में भी क्लासिफिकेशन किया, वहाँ भी जॉब्स क्रिएट की गई. ड्राफ्टमैन की जॉब, 3D डिज़ाइनर की जॉब, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर की जॉब. इस तरह से वहाँ पर भी जॉब्स क्रिएट हुई. वहाँ भी पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे, स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाएंगे, वो उस काम को ही करेंगे रिपीटेडली. सिविल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिविल इंजीनियर, सुपरवाइज़र, मैसन, लेबर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इस तरह से जॉब्स क्रिएट की जाएंगी और वो काम करेंगे. ऐसे ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जॉब्स क्रिएट की गई. कारपेंटर का काम, लकड़ी का काम करेगा. फॉल सीलिंग इंस्टॉलर फॉल सीलिंग लगाएगा. पेंटर पेंट करेगा. टाइलर टाइल लगाएगा. विंडो इंस्टॉलर, हैंडीमैन, इलेक्ट्रिशियन, ये अपना अपना काम करेंगे. और एक टाइम ऐसा आएगा ये एक्सपर्ट बन जाएंगे और बेनिफिट्स स्पेशलाइजेशन के मिल जाएंगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट we will discuss what is the meaning of authority and what is the meaning of responsibility. Authority means right of a superior to command his subordinates and obtain obedience. Means authority एक पावर है, एक राइट है किसी भी सुपीरियर का, जो अपने अंडर जो उसके सबॉर्डिनेट हैं उनको कमांड दे सके, उनको ऑर्डर दे सके और उनसे ओबीडियंस मीन्स उस काम को करवा सके. ऑब्टेन ओबीडियंस कि हाँ सर मैं कर दूंगा, ये हामी भरवाना है, दैट इज कॉल्ड ओबीडियंस. तो ये अथॉरिटी है. एंड दिस अथॉरिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप. वन इज ऑफिशियल अथॉरिटी, जो उसको उसकी पोजीशन से मिली है. एक सेल्स मैनेजर है तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको वो कमांड देगा, मीन्स उनको ऑर्डर देगा. दिस इज हिज ऑफिशियल अथॉरिटी. देन सेकेंड वन इज पर्सनल अथॉरिटी. अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर मीन्स हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और उस पर्सनालिटी से भी वो क्या करता है, वर्कर्स को या अपने अंडर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कमांड देता है. तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वो उसकी पर्सनल अथॉरिटी होगी. Then responsibility means obligation to carry out the assigned task on time. Means जब आपको अथॉरिटी मिल गई उस तो साथ के साथ आपको उस काम को करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है. मीन्स आपके लिए ऑब्लिगेशन है कि भाई आप उस काम को करोगे. मीन्स आपको काम मिला है, उस काम को करने के लिए आपको अथॉरिटी मिली है. तो काम मिला है दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उस काम को करने के लिए जो भी आपको पावर चाहिए दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी. नाउ व्हाट हेनरी फ्यूल सेज, he said authority is the right to give orders and obtain obedience. Responsibility follows authority. Means responsibility जो है
वो अथॉरिटी को फॉलो करती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इम्बैलेंस हो जाए तो व्हाट विल हैपन, दोनों ही सिचुएशन कंसीडर करेंगे। मीन्स अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी से या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाए अथॉरिटी से, तो ये प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वायलेट होगा। जैसे कि फर्स्ट सिचुएशन कंसीडर करते हैं, वेयर अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स काम कम करना है पर उसको पावर ज़्यादा मिल गई है, तो हो सकता है कि वो मैनेजर अपनी पावर्स का मिसयूज करे। मिसयूज ऑफ मैनेजरियल पावर मीन्स ही कैन बी ऑटोक्रेटिक, तानाशाह बन सकता है वो, तो ये नुकसान है। सेकेंड सिचुएशन, इट कैन बी लाइक responsibility is more than authority, then what will happen, the subordinate will not be able to discharge his duty। means अगर उसको काम ज़्यादा मिल गया है पर उस काम को करने के लिए जो अथॉरिटी चाहिए उतनी अथॉरिटी उसको नहीं मिलती है, तो वो काम पूरा नहीं कर पाएगा, वो टाइम पर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी and responsibility, means authority must be equal to responsibility। तभी जो है ये प्रिंसिपल फॉलो होगा, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा, प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, या तो टारगेट अचीव नहीं होंगे और या फिर मैनेजर जो है वो ओवर पावर कर जाएगा। मीन्स वो मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप you understand this principle। The next principle is principle of discipline। जनरली हम डिसिप्लिन को ये मानते हैं कि भाई जो हमको कहा गया है हम उस काम को करें तो हम डिसिप्लिन में हैं। पर यहाँ पर हेनरी फ्योल इससे भी कुछ ऊपर कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्योल, डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, जो मैंने पहली बात कही थी वो, एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। दो बातें हुई हैं कि जो रूल्स बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका पालन करना, और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो हुआ है, मीन्स वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच या मैनेजमेंट और ऑनर्स के बीच जो कमिटमेंट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, दोनों ही पार्टी, चाहे वो मैनेजर्स हों, चाहे वो वर्कर्स हों, या फिर वो मैनेजर्स हों या ऑनर्स हों, वो सभी जो हैं उस एग्रीमेंट का पालन करें तो डिसिप्लिन होगा। इनमें से अगर कोई भी उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा, तो सर्टेनली उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, वहां केओस हो जाएगा। अब डिसिप्लिन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मीन्स डिसिप्लिन ऐसे ही नहीं आ जाएगा, हमको अच्छे सुपीरियर्स भी चाहिए। मीन्स मैनेजर्स जो हैं हर लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल है मैनेजमेंट का, चाहे वो मिडिल लेवल है और चाहे वो लोअर लेवल है, हर लेवल पर हमको अच्छे सुपीरियर चाहिए, क्योंकि अच्छे सुपीरियर अपने पर्सनालिटी से अपने सबॉर्डिनेट्स को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। देन एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर एंड फेयर। जब एग्रीमेंट होता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, तो एग्रीमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मीन्स कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, और फेयर होना चाहिए। मीन्स उसमें किसी भी पार्टी का नुकसान ना हो, चाहे वो मैनेजर्स हो, मीन्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो वर्कर्स हो, किसी का उसमें नुकसान ना हो। देन थर्ड, बैलेंस एंड इम्पार्शियल यूज ऑफ पेनल्टीज।
मीन्स अगर एक सुपीरियर पेनल्टी दे भी रहा है, मीन्स किसी ने काम नहीं किया तो पेनल्टी दे रहा है, तो पेनल्टी जो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस मीन्स जो गलती है, कम गलती है तो कम पेनल्टी लगाए, ज़्यादा गलतियां हैं तो पेनल्टी ज़्यादा लग सकती है। दैट मीन्स बैलेंस पेनल्टी। और दूसरा इम्पार्शियल मीन्स भेदभाव ना हो। ऐसा तो ना हो कि भाई एक मैनेजर एक सबॉर्डिनेट की गलती तो इग्नोर कर रहा है या उसको कम पेनल्टी लगाई, और उतनी ही गलती के लिए दूसरे सबॉर्डिनेट को ज़्यादा पेनल्टी लगा दी, तो क्या होगा, वहाँ पर डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। जिसके ऊपर ज़्यादा पेनल्टी लगी है वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, वो बॉयकॉट करेगा, काम नहीं करेगा वो। तो इसलिए जो पेनल्टीज हैं उसका भी जुडिशियस यूज़ होना चाहिए, बैलेंस और इम्पार्शियल यूज़ होना चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक केस स्टडी है, एग्जाम में आ सकती है। एक कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं मार्केट में, उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में वर्कर्स की तरफ से कमिटमेंट हुआ कि भाई वो ओवर टाइम करेंगे और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं लेंगे, ताकि कंपनी रिवाइव हो सके, मीन्स पुनर्जीवित हो सके। तो साथ साथ मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि अगर कंपनी का रिवाइवल हो जाएगा तो रिवाइवल के बाद हम आपकी सैलरी या वेजेस बढ़ा देंगे। तो इस तरह से दोनों ही पार्टीज की तरफ से क्या हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, कमिटमेंट हो गया है। तो डिसिप्लिन जब होगा जब दोनों पार्टीज अपने इस कमिटमेंट को फॉलो करें। If both the parties honor their commitment, then only discipline will be applied. Means अगर किसी ने भी अपने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो वहीं डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा और ये प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाएगा। मीन्स अगर वर्कर ओवर टाइम नहीं कर रहे हैं तो वर्कर्स की तरफ से डिसिप्लिन नहीं है, या ओवर टाइम तो कर रहे हैं पर उसके लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट मांग रहे हैं तो भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वायलेट हुआ। या मैनेजमेंट ने वेजेस इंक्रीज नहीं की रिवाइवल के बाद, मीन्स कंपनी रिवाइवल हो गई है, रिवाइव हो गई है, अच्छी चलने लगी है और वेजेस इंक्रीज नहीं की, तो मैनेजमेंट ने भी अपने कमिटमेंट पूरे नहीं की, तो यहाँ पर मैनेजमेंट डिसिप्लिन में नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वायलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। Unity of command means a subordinate should receive orders from one superior at a time, and that subordinate should be accountable only to that superior. Means एक टाइम में एक सबॉर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करने चाहिए और उस टाइम वो उसी सुपीरियर को अकाउंटेबल जवाबदेह हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गोपीचंद सेल्स एग्जीक्यूटिव है एक कंपनी में, उसके दो बॉस हैं, मिस्टर गुप्ता सेल्स मैनेजर और मिस्टर बांसल हु इज द प्रोडक्शन मैनेजर। अब सिचुएशन देखो क्या होगी। जो सेल्स मैनेजर है मिस्टर गुप्ता, उसने ऑर्डर दिया गोपीचंद को कि गोपीचंद सेल मोर, वी हैव टू अचीव आवर सेल टारगेट, कि भाई ज़्यादा बेचो, जल्दी से बेचो ताकि हमारे टारगेट पूरे हो जाएं। अब उसी टाइम मिस्टर बांसल ने भी कहा गोपीचंद को कि गोपीचंद हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, आप सेल करने में स्लो हो जाओ, गो स्लो इन सेलिंग ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। सोचो, इमेजिन करो व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ गोपीचंद। दोनों ने ऑर्डर दे दिए हैं, फ्यूज हो जाएगा कि भाई किसके ऑर्डर पहले मैं पूरा करूं। क्या मैं गुप्ता की बात मानकर सेल की स्पीड बढ़ा दूं
या मिस्टर बंसल की बात मानकर मैं सेल को स्लो कर दूं। अब अगर वो किसी एक का ऑर्डर मानता है तो जो सुपीरियर जिसका ऑर्डर नहीं माना पहले, तो वो सुपीरियर दूसरे सुपीरियर के प्रति जेलसी रख सकता है। ही माइट डेवलप जेलसी टुवर्ड्स अदर सुपीरियर, जलेगा उससे। और जिसके ऑर्डर फॉलो नहीं किए वो उस सबॉर्डिनेट से नाराज भी हो जाएगा। अपने इस एग्जाम्पल के केस में मान लो गोपीचंद ने गुप्ता के ऑर्डर्स को मान लिया, तो बंसल गुप्ता के प्रति जेलस हो जाएंगे कि देखो गोपीचंद मेरी बात तो मानता नहीं और गुप्ता जी की बात मानता है, तो जेलसी आ गई। दूसरा, बंसल के मन में नाराजगी भी आ जाएगी गोपीचंद के प्रति और नाराज होकर हो सकता है उसका नुकसान कर दे। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे, झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, मीन्स फ्यूल का क्या कहना है इस बारे में कि इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, इफ इट इज वायलेटेड देन अथॉरिटी इज अंडरमाइंड। जिसके ऑर्डर नहीं माने जा रहे हैं तो उसकी अथॉरिटी तो कम हो गई ना एक तरह से। डिसिप्लिन विल बी जियोपार्डी, डिसिप्लिन वहां पर खतरे में आ जाएगा, इन डेंजर, एंड स्टेबिलिटी विल बी थ्रेटन्ड, और उस नेशन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये फ्यूल का कहना था। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पिक्चर में भी देख सकते हैं, आगे मैनेजर है, उसके पीछे सबॉर्डिनेट हैं, और जिस दिशा में मैनेजर जा रहा है उस दिशा में उसके सबॉर्डिनेट भी जा रहे हैं। एक एग्जांपल लेंगे, मान लो इंडिया में सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी दो डिवीजन हैं। एक है फोर व्हीलर सेगमेंट जिसमें वो कार बनाते हैं बेचते हैं, सेकंड वन इज टू व्हीलर सेगमेंट जहां पर वो बाइक और स्कूटर बनाते हैं और बेचते हैं। अब यहां पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कैसे फॉलोड है, दोनों ही डिवीजन इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। कार वाले डिवीजन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में है चाहे वो सेलिंग में है, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है अच्छी कार्स को बनाना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना। कहीं भी उनके ऑब्जेक्टिव क्लैश नहीं करेंगे टू व्हीलर सेगमेंट से। ऐसे ही जो टू व्हीलर सेगमेंट है, उस टू व्हीलर सेगमेंट में के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं भी क्लैश नहीं करेंगे कार वाली कंपनी के साथ। तो इस तरह से दोनों ही जो यूनिट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, और कार डिपार्टमेंट या कार डिवीजन या फोर व्हीलर जो डिवीजन है, उसका जो सुपीरियर है उसने जो पॉलिसीज बनाई हैं, प्लान्स बनाए हैं, उनके एम्प्लॉयज उसको फॉलो करते हैं। मीन्स वन हेड वन प्लान, दोनों ही डिवीजन का अपना अपना क्या है, हेड है और अपने अपने प्लान है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान। मीन्स अगर वो कार वाली जो कंपनी है तो उसका एक ही हेड होगा और उसका एक ही प्लान होगा, और सभी एम्प्लॉयज उस हेड की बात मानेंगे और उस प्लान के साथ ही चलेंगे, उससे अलग नहीं चलेंगे। तो ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड efforts. This will ensure unity of action and coordination. इससे क्या होगा,
उनके जो काम हैं, एक्शंस हैं, उनमें यूनिटी आ जाएगी, एकरूपता आ जाएगी और कोऑर्डिनेशन भी आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गए होंगे प्रिंसिपल्स। आपके लिए असाइनमेंट है, 5 आपके सामने केस हैं, आपने इन केसेस को स्टडी करना है और आपने देखना है क्या मैं इनके आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये आपके लिए असाइनमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। This is my YouTube channel Success in Commerce by Jain sir. If you like this video, then press like button and subscribe my channel to get notification. Thank you and have a nice day.